وہ جانتا تھا کہ ماضی میں اس کی ایجنسی کی نااہلی نے انہیں اسرائیلیوں کی نظروں میں کیسا رسوا کیا تھا۔ وہ ان کی پیشہ ورانہ استعداد کار کو رشک کی نظروں سے دیکھنے لگا تھا، اور موجودہ آپریشن میں بھی انہوں نے صرف اسی شرائط پر آمادگی ظاہر کی تھی کہ انہیں ایک ایک پل کی تفصیلات سے آگاہ رکھا جائے گا، خصوصاً اپنا کوئی بھی ایکشن پلان کرنے سے پہلے را انہیں اعتماد میں ضرور لے گی۔ شکتی کپور نے اپنی سینئرز کے احکامات کے تابع ان لوگوں کی ہاں میں بہر صورت ہاں ملانی تھی اور انہیں بہر صورت مطمئن کرنا تھا۔ تاریخ کا پہیہ تیزی سے گھوم رہا تھا۔ پاکستان کو دنیا کی نظروں میں گرانے کے لیے انہوں نے آج تک جو کوششیں کی تھیں، اب ان کو ثمر لگنے کا وقت آ گیا تھا۔ انہیں فوراً کچھ کرنا تھا، کوئی بھی ایسا کام جو ان کے دشمن کو دنیا کی نظروں میں گرا سکے، ان کے شیطانی مقاصد کی بجاوری کر سکے۔ سرکار کا دباؤ مسلسل بڑھ رہا تھا۔ ایجنسی کے بڑے بڑے شہ دماغ سر جوڑے دنوں سے یہ معمہ حل کرنے کے لیے کوشاں تھے، جب اچانک شکتی کپور کے شیطانی دماغ نے یہ منصوبہ ان کے سامنے پیش کیا۔ ایک مرتبہ تو وہاں موجود بڑے بڑے شہ دماغ ہل کر رہ گئے تھے، پھر سب اس کی تجویز پر اشش کر اٹھے۔ وزیر داخلہ کو انہوں نے جب تجویز کا بلو پرنٹ پیش کیا تو بے ساختہ اپنی جگہ سے یوں اٹھ کھڑا ہوا جیسے کرسی کے نیچے سپرنگ لگے ہوں۔ وہ مارا، وزیر داخلہ نے فائل پر مکہ مارتے ہوئے کہا۔ ڈی جی نے اس کی طرف استفہامیہ نظروں سے دیکھا۔ سر، اوکے، فوراً عمل کرو، فنڈز کی پرواہ نہ کرنا، کسی منسٹری سے بات کرنے کی ضرورت نہیں، فائنانس منسٹری کو اسپیشل انسٹرکشنز مل جائیں گی، ڈیفنس منسٹری کا سیکرٹ بجٹ تمہارے ڈسپوزل پر ہے اور اگلے 48 گھنٹوں میں تمہاری میٹنگ موساد سے ارینج کروا دی جائے گی۔ وزیر داخلہ نے اتنے زور و شور اور جوش و خروش سے بات کہی تھی کہ اس کے منہ سے تھوک کے چھینٹے فائل پر گر رہے تھے۔ تھینک یو سر، ڈی جی نے کھڑے ہو کر اسے تعظیم کی۔ مجھے 100% رزلٹ چاہیے۔ وزیر داخلہ نے اس کی طرف دیکھا۔ اس سے بھی زیادہ سر، اس سے بھی زیادہ۔ ڈائریکٹر جنرل را نے حسب عادت اپنے بائیں بازو کو زور زور سے ہلاتے ہوئے کہا اور سلوٹ مار کر باہر آ گیا۔ اب دیکھوں گا میں انہیں۔ ڈی جی کے باہر نکلتے ہی وزیر داخلہ نے اپنی مونچھوں پر الٹا ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر پھیلا مکروہ پن پہلے سے دو چند ہو گیا تھا۔ مسٹر شکتی، تم اس آپریشن کی کمانڈ کرو گے۔ ڈی جی نے اگلی شام موساد کے نمائندوں کے ساتھ وزارت خارجہ میں ہونے والی خفیہ گفتگو سے واپس لوٹنے کے بعد شکتی سے کہا۔ میری خوش قسمتی سر، شکتی نے سینہ پھلاتے ہوئے کہا۔ شکتی کپور، فنڈز کی پرواہ نہ کرنا، میں نے تمہارے سینئرز کو نظر انداز کر کے اس آپریشن کی کمانڈ تمہیں اس لیے دی ہے کہ یہ منصوبہ تم نے پیش کیا ہے اور ادھر کام کرنے کا بھی تمہیں زیادہ تجربہ ہے۔ تم ہائی کمیشن میں 3 سال گزار چکے ہو، لیکن ایک بات یاد رکھنا۔ شکتی نے اس کی طرف استفہامیہ نظروں سے دیکھا۔ یس سر، رزلٹ 100% سے کم نہیں ملنا چاہیے، 100%۔ میری بات کا مطلب سمجھتے ہو نا؟ ڈائریکٹر جنرل نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ یس سر، ایسا ہی ہوگا، میں آپ کے اعتماد پر ضرور پورا اتروں گا، شکتی نے بڑے یقین سے کہا۔ اوکے، گو اہیڈ۔ ڈی جی نے اپنے سامنے دھری فائل پر دستخط کر کے فائل بند کی اور اپنے دائیں ہاتھ رکھے ٹرے میں پھینک دی۔ شکتی نے کھڑے ہو کر قدم جمائے اور اسے تعظیم دی۔ سر، کل شام کی فلائٹ سے تم لندن جا رہے ہو اور اگلے روز 3 بجے وہاں سے تل ابیب۔ ڈی جی نے اسے مطلع کیا۔ شکتی ڈی جی کو سلوٹ مار کر آؤٹ ہو گیا۔ اب اسے لندن جانے کی تیاری کرنی تھی، جہاں بھارتی ہائی کمیشن میں موجود ان کے ساتھی نے اسرائیلی سفارت خانے کے ذریعے سارے بندوبست کر لیے تھے۔ دلی سے لندن اور وہاں سے تل ابیب تک کا اس کا سفر ایگزیکٹو کلاس میں ہوا تھا، جس سے اسے خود بھی اپنی خصوصیت کا احساس ہونے لگا تھا۔ کارل سمتھ 2 روز ہوٹل سے باہر گزارنے کے بعد جب لندن میں موجود اپنے ہوٹل کے کمرے میں پہنچا تو یہ خوشگوار حیرت اس کی منتظر تھی کہ وہ لندن سے باہر نہیں گیا۔ ہوٹل گارڈین میں گزشتہ 3 روز سے وہ نہ صرف موجود تھا بلکہ باقاعدہ اسی کے نام پر اس کے کمرے میں سروس ہوتی رہتی تھی، اسی کے نام سے ٹرانسپورٹ بک ہوتی رہتی تھی۔ دنیا کی کسی بھی ایجنسی کے لیے اس کی گزشتہ 2 دنوں سے لندن کے گارڈین ہوٹل سے پراسرار گمشدگی ثابت کرنا بظاہر ناممکن ہو چکا تھا۔ یہ موساد کے مقامی کیٹسا کا کمال تھا۔ اسی روز شام کی فلائٹ سے وہ نیو یارک واپس جا رہا تھا۔ نیو یارک کے لوگارڈیا ایئرپورٹ پر اس کے دفتر کی گاڑی اس کے منتظر تھی۔ کارل سمتھ لندن میں ایک خاص نیوز سٹوری پر کام کرنے گیا تھا جو اب تحریری صورت میں اس کے بریف کیس میں موجود تھی۔ اسی طرح اس کے لندن میں قیام کا جواز بھی فراہم کر دیا گیا تھا۔ آفس پہنچنے پر حسب سابق اس کا استقبال سب سے پہلے لیزا مارٹن نے کیا۔ لیزا 3-4 مہینے پہلے ہی پائنیئر میں آئی تھی۔ اس سے پہلے وہ ایک ہفت روزہ سے منسلک تھی۔ لیزا کو پائنیئر میں صرف کارل سمتھ لایا تھا۔ گزشتہ 3 سال سے وہ کارل سمتھ کی ایکسکلوسیو سٹوریز پڑھ پڑھ کر اس کی فین بن چکی تھی۔ ہر دوسرے تیسرے ماہ کارل سمتھ کوئی نہ کوئی اہم خبر لا کر سب کو حیران کر دیتا، گو کہ اس کے دفتر کے ساتھ ہی اسے کارل کی ایجنسیوں کے ساتھ دوستی کا شاخسانہ قرار دیتے تھے۔ لیکن لیزا مارٹن نے کبھی یہ بات تسلیم نہیں کی تھی۔ اس نے کارل سمتھ کو محنت کرتے دیکھا تھا، اپنے کام سے اس کی لگن کی لیزا عینی شاہد تھی۔ اس کی ہمیشہ سے خواہش رہی تھی کہ وہ بھی کارل سمتھ کی طرح کوئی ایسی بڑی سٹوری نکالے جو اخباری ہیڈ لائن بنے، جس پر مباحثہ ہو، جس پر لوگ گلی بازار میں بات کریں اور الیکٹرانک میڈیا جس کا نوٹس لے۔ لیکن ایسا وہ صرف سوچ سکتی تھی کیونکہ اس کے اتنے زیادہ ذرائع نہیں تھے کہ کوئی بڑی خبر نکال سکے۔
हेलो लीजा। कार्ल ने बैठे बैठे उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। लीजा उसके ऑफिस में ही चली आई। कमाल कर दिया सर आपने तो इस मर्तबा। लीजा बड़े जोश खरोश से उसकी तारीफ कर रही थी। तुम भी कोई स्कोप मारो ना। कार्ल ने उसके सामने दाना फेंका। अपनी ऐसी किस्मत कहाँ सर। लीजा ने कदरे मायूसी से सर हिलाया। देखो लीजा, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि ये किस्मत वगैरह को मैं नहीं मानता। कम हिम्मत लोगों ने अपनी डिक्शनरियां अलग बनाई होती हैं जिनमें ऐसे अल्फाज बकसरत पाए जाते हैं। मैं तो एक बात का कायल हूँ लीजा, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। उसने लीजा के सामने फोम के कप में तैयार कॉफी रखते हुए कहा। लेकिन सर चांस मिलने की बात भी तो है, हमें तो कोई चांस ही नहीं देता। लीजा ने शुक्रिया कहकर कप अपने हाथ में पकड़ते हुए कहा, चांस तुम्हें मैं देता हूँ। उसने लीजा की तरफ देखे बगैर कहा, वाकई सर। लीजा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। हाँ वाकई। कार्ल ने उसकी खूबसूरत नीली आंखों में झांका। तुम पाकिस्तान जाने की तैयारी करो, वहाँ बड़ी बड़ी कहानियां तुम्हारी मुंतजर हैं। लीजा को अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। 11 सितंबर के बाद से गो के सारा मगरबी प्रेस पाकिस्तान पर झपट पड़ा था, लेकिन लीजा मार्टिन ने कभी ये नहीं सोचा था कि उसे किसी ऐसे एडवेंचर के काबिल समझा जाएगा। ओ माय गॉड, सर आप सीरियस हैं? उसने करीबन कार्ल स्मिथ पर झुकते हुए उससे दरियाफ्त किया। अपनी जगह मुतमईन होकर बैठो, ऐसी बातें मजाक में नहीं की जाती। उसने लीजा के कंधे पर आहिस्ता से हाथ का दबाव बढ़ाते हुए कहा, सर ऐसा हो जाए तो। शिद्दत जज्बात से उससे आगे वो कोई बात न कह सकी। देखो लीजा, मेरा उसूल है कि नौजवानों को मौका मिलना चाहिए, उन्हें अपनी सलाहियतें आजमाने का मौका जरूर मिलना चाहिए। और मैं खजाने पर सांप बनकर बैठने का कायल नहीं। आसमान सबके लिए खुला होना चाहिए, हर कोई अपनी कुव्वत परवाज को आजमाए। क्या ख्याल है तुम्हारा? उसने लीजा की तरफ अजीब सी नजरों से देखा। सर मुझे तो अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा। लीजा ने एहसास तशक्कुर से अपनी आंखें झुका रखी थी। लेकिन एक बात है लीजा। अचानक उसने पैंतरा बदला। क्या सर, क्या बात है? लीजा ने करीबन घबराते हुए कहा, देखो लीजा मार्टिन, अमेरिका के अफगानिस्तान पर हमले के बाद से सारी दुनिया का प्रेस वहाँ मौजूद है। मामूल की खबरें सब लोग दे रहे हैं। खुसूसी स्कोप मारने के लिए तुम्हें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। उसने लीजा मार्टिन पर नफ्सियाती दबाव बढ़ाया। सर मैं ऐसा कर सकती हूँ, मैं घबराने वाली नहीं। लीजा ने बड़े एतमाद से कहा, मैं तुम्हें एक खुसूसी जॉब दे रहा हूँ। इंटरव्यू तुम्हारा मैदान है। अगर तुम थोड़ी हिम्मत और अक्ल इस्तेमाल करके पाकिस्तान से उस शख्स का इंटरव्यू ले आओ तो तुम दुनिया की बड़ी खबर दे सकोगी। ये कहकर उसने अपनी दराज से एक तस्वीर निकाली और लीजा मार्टिन की तरफ फेंक दी। लीजा ने बेकरारी से हाथ बढ़ाकर तस्वीर उठा ली। यह करीबन 60 साल बारिश आदमी की तस्वीर थी। लंबे कद और शरीर बदन के उस शख्स की आंखों से कुछ ऐसी जहानत टपक रही थी जिसने लीजा को भी मुतासिर कर दिया। कौन है ये? उसने तस्वीर से नजरें उठाए बगैर उससे दरियाफ्त किया। पीरजादा साहब, यही है इसका नाम। इस नाम से मशहूर है ये शख्स। CIA, FBI और MI6 के नजदीक ये मुश्तबा दहशतगर्द है। अमेरिका में होने वाले दहशतगर्दों के 2 अहम वाकयात में इसके मुलव्विस होने का शक किया जा रहा है। ये शख्स अमेरिका में रहता था। 10 साल इसने यहाँ तबलीग की और सैकड़ों लोगों को मुसलमान किया। हैरत की बात यह है कि इसके हाथों मुसलमान होने वाले इसके फिदाई बनकर जिंदा रहते हैं। इसके हुक्म पर आंखें बंद करके मौत के कुएं में छलांग लगा सकते हैं। इसकी सरगर्मियां बहुत पुरअसरार हैं। इसे इस बात का इल्म है कि जल्द या बदेर इसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, इसलिए बहुत मोहतात है। दुनिया भर से इसके 9 मुस्लिम मुरीद इसको मिलने जाते हैं और वहां से नया मिशन लेकर यहाँ आ जाते हैं। लंदन, जर्मनी और पेरिस में दहशतगर्दी के वाकयात में इसके मुरीद गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन क्या मजाल उन्होंने पीरजादा का नाम मुंह से निकाला हो। एजेंसियों के पास इस बात का सबूत मौजूद है कि गिरफ्तार होने वाले ने आखिरी मुलाकात पीरजादा से की थी। उसी की हिदायत और हुक्म पर ये वारदात की है, लेकिन पकड़े जाने वाले इस बात को तस्लीम नहीं करते। वो इसे अपना रूहानी पेशवा तो मानते हैं, लेकिन ये बात तस्लीम नहीं करते कि तकरीबी कार्रवाइयाँ उसके हुक्म से हो रही हैं। कार्ल स्मिथ पीरजादा से मुताल्लिक तफसीलात लीजा मार्टिन को सुना रहा था और लीजा मार्टिन की दिलचस्पी बढ़ती जा रही थी। करीबन 1 घंटे बाद जब वो कार्ल स्मिथ के कमरे से बाहर निकल रही थी तो उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी कि वो किसी भी तरह उड़कर पाकिस्तान पहुंचे और पीरजादा के मुंह से कोई ऐसी बात उगलवा ले जिसके जरिए वो सारे मीडिया पर छा सके। अगले 24 घंटों में लीजा मार्टिन को उसका पासपोर्ट पाकिस्तानी वीजे समेत मिल गया। PIA की एग्जीक्यूटिव क्लास में उसके लिए सीट बुक हो चुकी थी। उसे 2 रोज बाद पाकिस्तान जाना था। न्यूयॉर्क से इस्लामाबाद और फिर इस्लामाबाद से कोयटा, जहां एक 5 स्टार होटल में उसके लिए कमरा बुक हो चुका था। वहां बहुत सी खबरें तुम्हारी मुंतजिर होंगी लीजा, लेकिन अच्छा सहाफी वो है जो भीड़ के पीछे न भागे बल्कि अपनी अलग शनाख्त बरकरार रखे। तुम्हारा टारगेट पीरजादा है और पीरजादा बस। बहरहाल इसका इंटरव्यू हासिल करो, खा इसकी कुछ भी कीमत अदा करनी पड़े। मैं तुम्हें वहाँ अपना एक सोर्स दूंगा। बड़ा ज़हीन लड़का है नवीद अख्तर, मेरे लिए उसने बहुत काम किया है। जब मैं वहाँ स्टेशन इंचार्ज था तुम उसे खुलकर हर बात कर सकती हो। उसे एतमाद में लेकर कोई भी बड़ा एडवेंचर कर सकती हो।
बहुत वफादार लड़का है, बस उसका जरा ख्याल रखना। उसने दमे रुखसत लीजा मार्टिन को ब्रीफिंग देते हुए कहा, सर आप मुतमईन रहिए और देखते जाएं मैं आपके लिए क्या कुछ कर सकती हूँ। सर ऐसा ब्रेक थ्रू करूंगी कि सब हैरान रह जाएंगे। लीजा ने बड़ी गर्म जोशी का मुजाहरा करते हुए कहा, हाँ वो तो है। कार्ल स्मिथ ने जुमानी बात कहकर खुद ही कहकहा लगाया। लीजा को उसकी बात तो समझ न आई, लेकिन इखलाकन उसने भी दांत निकाल दिए, क्योंकि कार्ल स्मिथ उसका बॉस था और एक अमेरिकन कंपनी की मुलाजिमा को हमेशा ये बात याद रखनी होती थी। ओके तुम तैयारी करो जाने की, विश यू ऑल द बेस्ट। कार्ल ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, जिसे लीजा ने गर्मजोशी से थाम कर 2-3 मरतबा दबाया और एहसास तशक्कुर से बाहर आ गई। जहां हॉल कमरे में उसके साथी उसे मुबारकबाद दे रहे थे। उनके लिए ये बात बड़ी हैरानकुन थी कि इतने जूनियर सहाफी होने के नाते उसे आखिर किस तरह इतनी अहम रिपोर्टिंग की इजाजत मिल गई। तुम्हें इसकी असल क्वालिफिकेशन का तो इल्म ही नहीं। स्मार्था ने बड़े जले कटे लहजे में फिक्रा उछाला, मुझे तुमसे हमदर्दी है मिस स्मार्था, लेकिन टैलेंट बहरहाल अपनी अहमियत मनवा कर रहता है। बूढ़े जॉन हॉक ने तंज किया, जी हाँ अगर टैलेंट यहूदी भी हो तो क्या कहने। स्मार्ता भी जली भुनी बैठी थी। यहूदी तो मैं भी हूँ डार्लिंग, अपनी अपनी किस्मत की बात है। ढलती उम्र की एडिटर इंचार्ज एशली ने ठंडी आह भरते हुए कहा, लेकिन आप में लीजा जैसी गर्मजोशी बाकी नहीं रही मैडम। बूढ़े जॉन हॉक की बात पर सबने कहकहा लगाया। जैक्सन हाइडआउट पर आसिफ शाह की आमद कोई ऐसा गैर मामूली वाकया नहीं था। उसका आना जाना यहाँ लगा ही रहता था। खुसूसन यहाँ का गुजराती रेस्टोरेंट उसका पसंदीदा होटल था, जहाँ के गुजराती और मद्रासी खाने आसिफ शाह को खासे मरगूब थे। डोसा मसाला। उसने काउंटर के करीब खड़े होकर अपने खुसूसी वेटर से कहा और वहाँ मौजूद शिनासा चेहरों से बारी बारी हाथ मिलाता बिलाखिर कोने की मेज पर जाकर बैठ गया। ऐन इन लम्हात में जब वो गुजराती होटल में दाखिल हुआ, एक मकामी काले ने अपने मोबाइल फोन से उसकी आमद और होटल में मौजूदगी का पैगाम आगे पहुंचा दिया था। FBI का ये मुखबर गुज़श्ता 15 रोज से आसिफ शाह के साथ साए की तरह चिपका हुआ था और उसकी सारा दिन की सरगर्मियां तफसील के साथ FBI के कंप्यूटर को नोट करवा रहा था। आसिफ शाह से मुताल्लिक FBI को पक्का यकीन था कि पाकिस्तान में मौजूद पीरजादा से उसका गहरा ताल्लुक है और अमेरिका से पीरजादा के लिए जो फंडिंग होती है उसका एक अहम जरिया आसिफ शाह ही है। लेकिन FBI यकीन की हद तक कायम करदा इस मफरूजे का अभी तक कोई सबूत हासिल नहीं कर सकी थी। उन्होंने आसिफ शाह की मामूल की निगरानी की थी और कभी खातिर खा नताइज बरामद न कर सके। 11 सितंबर के बाद से सूरत हाल में अचानक जो शिद्दत पैदा हो गई थी, उसने FBI को माजी के तमाम भूले सबक याद दिला दिए थे। आसिफ शाह की 6-7 माह पहले बंद हो जाने वाली फाइल दोबारा खुल गई और अमेरिका में मौजूद दीगर हजारों मुश्तबा पाकिस्तानियों की तरह FBI ने उसके गिर्द भी मुखबरों का जाल फैला दिया। FBI के मकामी बॉस ने इस सिलसिले में जो पॉलिसी इख्तियार कर रखी थी, उसमें नाकामी के चांसेस बहुत कम थे। उसका कहना था कि मुश्तबा शख्स पर मुसलसल नजर रखो, उसे अपनी नजरों से ओझल न होने दो। मुल्जिम कितना भी चालाक हो, कभी न कभी वो कोई ऐसी गलती जरूर करता है जिससे उसकी असलियत बेनकाब हो जाए। और आज आसिफ शाह ने भी इत्तेफाक से वही गलती दोहराई थी। इस बात का तो उसे इल्म था कि उसके घर और ऑफिस के फोन बग हो रहे हैं, लेकिन ये गुमान उसे नहीं था कि न्यूयॉर्क के तमाम ऐसे फोन बूथ जहां पाकिस्तानियों की आमद मुतवक्के हो, उन पर FBI की नजर है। उसने खाने से फारिग होकर पे कार्ड के जरिए गुजराती होटल में नस्ब फोन बूथ से इंटरनेशनल कॉल मिलाई। पाकिस्तान में ये कॉल किसी मलिक साहब ने मौसूल की और आसिफ शाह ने भी अपने असली नाम की बजाय चौधरी के नाम से बात की। दोनों ने एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त की, कारोबार से मुताल्लिक मालूमात का तबादला किया और चौधरी ने मलिक साहब से वादा किया था कि अगले 2 रोज में वो रकम उन तक पहुंचा देगा। फोन बंद करने पर वो दोबारा होटल के काउंटर पर आया, अपने क्रेडिट कार्ड से उसने बिल अदा किया और अपनी राह ली। अगले 2 रोज बाद उसने मामूल के मुताबिक मकामी मार्केट में हुंडी का कारोबार करने वाले मकामी एजेंट के जरिए रकम मलिक साहब तक पहुंचा दी। दूसरे रोज आसिफ शाह अपने घर से मामूल के मुताबिक ऑफिस जाने के लिए रवाना हुआ और उस पार्किंग लॉट तक पहुंचा जहां वो गाड़ी खड़ी करता था। अभी उसने गाड़ी के दरवाजे की तरफ बमुश्किल हाथ ही बढ़ाया था जब अचानक उसके नजदीक एक कार के पहिए जोरदार आवाज से चरचराए और 2 लंबे तड़ंगे नौजवान अगले दरवाजों से बाहर निकलकर उसकी तरफ बढ़े। FBI। दोनों ने अपने खुसूसी कार्ड उसकी आंखों के सामने लहराते हुए अपना तारुफ करवाया। यस सर। आसिफ शाह ने खुद को नॉर्मल कर रखा था। मिस्टर शाह, आपको हमारे साथ जाना है। FBI मार्शल ने उसे हुक्म सुनाया। लेकिन क्यों? आसिफ शाह ने बज़ाहिर हैरानगी से पूछा। अभी हम नहीं बता सकते। उसी मार्शल ने बड़े सर्द लहजे में पिस्तौल उसके मुंह के सामने लहराते हुए कहा। आम हालात में शायद आसिफ शाह इस सूरत हाल को बर्दाश्त न करता और उसे खरी खरी सुना भी देता, लेकिन 11 सितंबर के बाद से जहां पाकिस्तानियों की पुलिस और FBI के हाथों जो दुर्गत बन रही थी, उसका तकाजा यही था कि वो चुपचाप उनके साथ चला जाए। उसने अब तक ऐसे दर्जनों पाकिस्तानी अमेरिकन की कहानियां सुन ली थी जिन्होंने अपना कानूनी इस्तेहकाक जताना चाहा। जवाब में पुलिस और FBI ने
जख्म की अच्छी खासी ठुकाई करने के बाद उन्हें उठाकर अपनी गाड़ी में फेंका और चल दिए। आसिफ शाह को पाकिस्तान से आए 12 साल हो रहे थे। वो पाकिस्तान से अमेरिका पाकिस्तानी पुलिस के जुल्म तशद्दुद और इंतकामी कार्रवाइयों के शिकार होने के बाद गैर कानूनी तरीके से भाग कर आया था और अमेरिका में 5-6 साल तक उसका मौजूए सुखन उमूमन पाकिस्तानी पुलिस ही रहा करती थी। लेकिन जहां गुज़श्ता चंद रोज से जो सलूक खुसूसन पाकिस्तानियों के साथ हो रहा था, उसके बाद से उसे अमरीकियों के मुकाबले में पाकिस्तानी पुलिस फरिश्ता दिखाई देती थी। एहतजाज का एक लफ्ज अपने मुंह से निकाले बगैर वो चुपचाप FBI वालों की कार की पिछली सीट पर बैठ गया और अगले 15 मिनट बाद वो FBI के मकामी ऑफिस में मुल्जिमों की तरह एक कुर्सी पर सर झुकाए बैठा था। उसके सामने वो दोनों पुलिस मार्शल मौजूद थे जो उसे यहाँ तक लाए थे। दोनों के दरमियान एक लकड़ी की भारी मेज भी धरी थी, लेकिन न जाने क्यों आसिफ शाह को यूं महसूस हो रहा था जैसे अभी ये लकड़ी की मेज दोनों के दरमियान से हटेगी और FBI के ये मार्शल उसे अपनी ठोकरों पर रख लेंगे। उनकी आंखों से झांकती नफरत और जहर उगलती जबानों का कहर कोड़ों की तरह आसिफ शाह के दिमाग पर बरस रहा था। इसे जानते हो मिस्टर शाह? मार्शल ने पीरजादा की एक तस्वीर उसकी आंख के सामने लहराते हुए कहा। हाँ, आसिफ शाह के लिए झूठ बोलना मुमकिन नहीं था। कैसे? अगला सवाल खासे तल्ख लहजे में किया गया, एक दीनी रहनुमा की हैसियत से। इसकी तस्वीर अखबारात में छपती रहती है और पाकिस्तान में इसकी शोहरत एक पीर की सी है। आसिफ शाह ने बज़ाहिर चालाकी दिखाई, इससे ज्यादा नहीं। दूसरे मार्शल ने तंजिया लहजे में कहा। नहीं, आसिफ ने कदरे संभल कर कहा। पीरजादा से तुम्हारी कोई डीलिंग तो नहीं रही ना? नहीं, कभी नहीं, आसिफ ने इसरार किया। मिस्टर शाह, मैंने तुम्हें शुरू में ही कह दिया था कि झूठ न बोलना, इस तरह तुम बच सकोगे। लेकिन यूं लगता है घी सीधी उंगलियों से नहीं निकलेगा। मार्शल को गुस्सा आने लगा। देखो मिस्टर, मुझे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं। आसिफ को तो यकीन था कि उसने कोई ऐसी गलती या बेएहतियाती नहीं की जिसकी वजह से उसका पीरजादा से कोई ताल्लुक जाहिर हो। तुम झूठ बोल रहे हो मिस्टर शाह। न सिर्फ तुम्हारा इससे ताल्लुक है, बल्कि तुम उसे हुंडी के जरिए ड्रग मनी भेजते हो और जाली नाम और शनाख्त के साथ ये सब गैर कानूनी काम कर रहे हो। मार्शल ने उसे फाड़ खाने वाले लहजे में अपनी कुर्सी से खड़े होकर कहा। दोनों के दरमियान मेज मौजूद थी, लेकिन गुस्से से उसके मुंह से जो शोले निकल रहे थे उनकी तपिश आसिफ शाह को अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। क्या ड्रग मनी? मैं समझा नहीं। आसिफ शाह वाकई गड़बड़ा गया। अभी समझ जाओगे, दूसरे मार्शल ने कहा और एक टेप का स्विच ऑन कर दिया। उसमें मौजूद कैसेट पर उसी गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग मौजूद थी जो उसने गुजराती होटल से की थी। आसिफ शाह को शदीद सर्दी में अपना बदन पसीने में भीगता महसूस हो रहा था, लेकिन मैंने तो अपने कजन मलिक अमजद से बात की है। आसिफ शाह ने बज़ाहिर संभलना चाहा। लुक मिस्टर शाह, हमारे पास यहाँ से बजरिया हुंडी $50,000 पीरजादा को भेजने और उसके पाकिस्तान में मौसूल करने का पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। तुम जितना झूठ बोलोगे उतना ही ज्यादा फंसोगे। जानते हो पीरजादा दहशतगर्दी में मतलूब है, उसके वारंट हम जारी करने वाले हैं। मार्शल की एक ही धमकी ने आसिफ शाह को लिटा दिया। ये मत भूलो मिस्टर शाह कि तुम आज भी पाकिस्तानी पुलिस को कई केसों में मतलूब हो। अगर हमने तुम्हें पाकिस्तानी पुलिस के हवाले कर दिया तो सारी जिंदगी जेल में गुजारोगे। दूसरे मार्शल की धमकी ने उसे चारों शाह ने चित कर दिया था। तुम लोग क्या चाहते हो? आसिफ शाह ने गर्दन झुकाते हुए कहा। ये हुई ना बात, मार्शल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। जाने से पहले आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश करेंगे कि अगर आप हमारी वीडियो पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर दें ताकि आपको सारी वीडियोस फौरन मिलती रहें। और अगर आप ये भी ना करना चाहें तो एटलीस्ट वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। और अगर आप मुझे एज अ कंटेंट क्रिएटर सपोर्ट करना चाहते हैं तो लिंक्स आपको स्क्रीन पर भी और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अपना और अपने वतन का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।